الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہے کر کرم کروا کرم سارے جہاں میں رکھ برم بغیر دابے بلافتاد کشتی ضعیفانہ شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہرونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید کر خطائیں معاف میری اور مجھے اپنا بنا شاہ ربانی حبیب باحیا کے واسطے ابتدائے رب جلیل دے حلافتاں تے عنایتاں والے نام تو جن دی ذات پاک تمام تعریفاں دے لائق تے ہمیشہ تمام تعریفاں دے لائق اس قادر مطلق دی ذات پاک رہے گی سارے دوست مل کے درود و سلام پیش کرو اپنے کریم صاحب کمال صاحب جمال آقا دی بارگاہ اقدس کے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ قرآن پاک سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 شانیں ہمیں قرآن و حدیث سے بڑی آسانی سے مل جاتی۔ شان نورانیت، شان محبوبیت، شان افضلیت، شان بشریت، شان مثلیت اور شان ابدیت، 6 کی 6 شانیں ہمیں قرآن پاک سے واضح طور پر مل جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث کے ذخیرہ سے بآسانی یہ شانیں قرآن پاک سے حدیث پاک سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ ان 6 کی 6 شانوں کے نام ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھ لیں، اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھ لیں، مشرکین مکہ کی زندگی کو دیکھ لیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ظاہراً دیکھنے والے یہ 2 گروہ تھے۔ ایک کفار و مشرکین کا گروہ تھا اور دوسرا صحابہ و اہل بیت اطہار کا گروہ تھا۔ یہ 6 کی 6 شانیں صحابہ اکرام بھی مانتے تھے اور 6 کی 6 شانیں کفار مشرکین بھی مانتے تھے، اس لیے کہ عقل میں جو بات آ جاتی ہے وہ جٹلائی نہیں جا سکتی۔ اب اس وقت اگر دن کے 12 بجے ہیں تو کوئی کافر آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ شام ہو گئی ہے، کیونکہ عقل میں آ گئی کہ یہ دن کے 12 ہیں۔ اس وجہ سے جو بات عقل میں آ جائے اس کا انکار کرنا محال ہو جاتا ہے۔ کفار و مشرکین نے کیونکہ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تھے، سورج کا اوپر پہاڑوں کی چوٹیوں تک آنا دیکھا تھا، درختوں کا سرکار مدینہ کے فرمان پر انگلی کے اشارے سے چلنا دیکھا تھا، انہوں نے ابو جہل کے ہاتھوں میں پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تھا۔ وہ سرکار مدینہ کی نورانیت پر، افضلیت پر کا کیسے انکار کر سکتے تھے، فضیلت کا کیسے انکار کر سکتے تھے؟ سرکار مدینہ چلتے تھے، جنگ و حجر میں بھی جاتے تھے، بیوی تھے، بچے تھے،
मामूल की ज़िंदगी बसर करते थे। इसलिए सहाबा इकराम सरकार मदीना की मिसलियत, बशरियत और अब्दियत का कैसे इनकार कर सकते थे। ये 6 की 6 शाने कुफार और मुशरिकीन भी मानते थे और सहाबा इकराम अजमाइन मजमाइन भी मानते थे। वो भी मानते थे, ये भी मानते थे। फ़र्क ये था कि जब वो देखते कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ा उनके सामने आता तो वो उस शान को बर्दाश्त ना कर पाते और कहते हमारी तरह के अबद हैं, हमारी मिसल हैं, हमारे तरह बशर हैं। ये कहकर वो अपने लोगों को कवर करते। और सहाबा इकराम अलैहि रिज़वान जब भी सरकार मदीना की बात होती तो सरकार की नूरानियत की बात करते, अफजलियत की बात करते, महबूबियत की बात करते। इनका सारे का सारा जोर इन शानों पर होता और कुफार मुशरिकीन का सारा जोर इस बात पर होता, क्योंकि एक होता है इकरार, एक होता है इसरार। अगर मुशरिकीन मक्का से पूछा जाता कि सरकार अफजल नहीं है तो वो कहते हाँ अफजल है। सरकार नूर नहीं है तो वो कहते हाँ नूर है। सरकार महबूब नहीं है अल्लाह के तो वो कहते हाँ महबूब है। लेकिन जब भी वो आपस में बैठते ना महबूबियत का जिक्र करते, ना अफजलियत का जिक्र करते, ना नूरानियत का जिक्र करते, सिर्फ बशरियत का, अब्दियत का और मिसलियत का जिक्र करते। सारे का सारा जोर अपनी वाज़ों का, अपनी तकरीरों का, अपनी तबलीगों का मुशरिकीन यही करते थे कि हमारे जैसा बशर है, हमारी मिसल है, अबद है। और एक तरफ इकरार करते थे इन शानों का। अगर उनसे पूछा जाता कि बताओ नूर नहीं है तो कहते हम इकरार करते हैं। नूर का इकरार करते थे, अफजलियत का इकरार करते थे, महबूबियत का इकरार करते थे और सारे का सारा जोर बशरियत, मिसलियत और अब्दियत पर लगाते थे। या इधर सहाबा व अहले बैत अतहार की शान ये थी कि अगर इनसे पूछा जाता हजूर बशर नहीं है तो कहते हाँ बशर है, मिसल हैं, अबद हैं। लेकिन इन चीज़ों का इकरार करते थे और सारे का सारा इसरार और सारे का सारा जोर हजूर की अफजलियत पर करते, नूरानियत पर करते, महबूबियत पर करते। उधर ये मामला था, इधर ये मामला है। आज भी वो दौर सामने आ रहा है। हमें किसी को निशाना बनाने की, कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं। आप खुद देख लें कि मुशरिकीन मक्का के रास्ते पर कौन चल रहा है और सहाबा व अहले बैत अतहार के रास्ते पर कौन चल रहा है। अगर अब्दियत, मिसलियत और बशरियत पर जोर दे रहे हैं तो वो कुफार मुशरिकीन के रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर हजूर की अफजलियत पर, महबूबियत पर और नूरानियत पर बात कर रहे हैं तो वो सहाबा इकराम अहले बैत के अतहार के नक्शे पर चल रहे हैं। सहाबा इकराम की मोहब्बत ने हमें ये बता दिया कि मोहब्बत की कोई दलील नहीं होती, मोहब्बत दलीलों की मोहताज नहीं होती, मोहब्बत को कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती। सहाबा इकराम की मोहब्बत देखें। सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गार में एड़ी पर डंग खाए तो कहाँ से दलील मिली थी? ना कुरान पाक में आया था कि मेरे महबूब की हिफाजत करते हुए डंग खा लेना, ना सरकार मदीना ने फरमाया था कि मेरी हिफाजत के लिए तुम्हें डंग भी पड़ जाए तो खा लेना। क्या थी? मोहब्बत की अपनी दलील होती है, मोहब्बत खुद दलील होती है। सैयदना फ़ारूक आज़म उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद का बोसा लेते हुए मुखातब करके कहते हैं तू पत्थर है, तेरी मैं कोई हैसियत नहीं समझता, तुम्हें बोसा इसलिए ले रहा हूँ कि तुझे सरकार मदीना ने चुमा है। सहाबा इकराम जो भी अमल करते उसमें वो देखते कि सरकार मदीना का अमल है कि नहीं है। ये दलील, ये तरीका उनको किसने दिया? किस दलील से उन्होंने ये बात की? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुदैबिया के मुकाम पर सेने काबा में खड़े होकर भी तवाफ ने किया। मुशरिकीन ने कहा तवाफ कर लो, सेन में खड़े हो। फरमाया जिसने हमें इस काबे की पहचान करवाई है, अगर उसने नहीं करना तो हमने भी नहीं करना। मौला अली ने वारी
तेरी नींद पर नमाज वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। अगर वो अकली ताल्लुक सरकार मदीना से जोड़ते तो कहते सरकार मैं पहले नमाज पढ़ लूँ। अगर अमली ताल्लुक जोड़ते तो कहते पहले नमाज पढ़ लूँ। उनका ताल्लुक इल्म वाला था, अमल वाला था, मोहब्बत वाला ताल्लुक था, और मोहब्बत की किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती। सहाबा इकराम के अमल ने हमें ये बताया है कि जब मोहब्बत में कोई अमल करो तो उसमें कोई दलील की ज़रूरत नहीं, मोहब्बत खुद ही दलील होती है। क्योंकि दलीलों को तलाश करने के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है, और अक्ल के मुतल्लिक़ मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अकल कुंबा कुंबा पेशे मुस्तफ़ा, अकल कुंबा कुम बा पेशे मुस्तफ़ा, हस्बे अल्लाह गो कि अल्लाह हम कफ़ा। अकल को सरकार मदीना के कदमों पर कुर्बान कर दो। जब अकल कुर्बान हो गई तो दलीलों का सिलसिला खुद ब खुद ख़त्म हो गया। इसलिए कि मोहब्बत अकल से नहीं होती, मोहब्बत तो इश्क है, और मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए दलीलों की ज़रूरत नहीं होती। सहाबा इकराम अलैहि रिज़वान वज़ू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे, मुँह मुबारक ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे, लवाबे दहन को ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे। खून का प्याला एक सहाबी को अता किया गया कि इसको तू फेंका, लेकिन उसने खुद पी लिया। ये मोहब्बत थी उनकी, खुद पी लिया। तो सरकार की खिदमत में आया तो आपने पूछा क्या किया? हजूर मैंने तो पी लिया। आपने ये नहीं फरमाया कि क्यों किया ऐसा, तुमने तो बड़ा गलत काम कर दिया, इसकी तो कोई दलील ही नहीं थी। फरमाया जिसकी रगों में मेरा खून होगा जन्नत दोज़ख उस पर हराम हो जाएगी। साथ फतवा भी दे दिया कि दोज़ख उस पर हराम हो जाएगी। तो ये जितने अमाल मोहब्बत में सहाबा इकराम ने किए हैं, इनकी दलील कहाँ है? ना उन्हें कुरान पाक ने ये बताया था, ना उन्हें सरकार ने ये फरमाया था। पता चला मोहब्बत को किसी दलील की ज़रूरत नहीं। हम बरेलवी अहले सुन्नत वाल जमात आज मिलाद मनाते हैं, महराज मनाते हैं, जो भी ये अमल हम करते हैं हमें किसी दलील की कोई ज़रूरत नहीं। मिलाद मोहब्बत के लिए होता है, महराज मोहब्बत के लिए बयान करते हैं, और मोहब्बत की कोई दलील नहीं होती। सहाबा से हमें ये अमल मिला है कि मोहब्बत के लिए किसी अमल की दलील की तो ज़रूरत नहीं है। जो हमने अमल सरकार मदीना की मोहब्बत में किए, दलीलों के बगैर किए, तुम भी जो सरकार का मिलाद मनाओ तो दलीलों के बगैर मनाओ, क्योंकि मोहब्बत खुद दलील होती है। इसको अकल की नहीं, इश्क के तराजू से तोला जाता है। अकल कुंबा कुंबा पेशे मुस्तफ़ा, हस्बे अल्लाह गो कि अल्लाह हमको